Hello everyone, welcome back to my channel. As you saw, I hope I had shown a good recap of the morning. I wish I could talk as soon as I woke up, but that's just impossible for me. So I had a good morning. Started my day off with jeera dhania water. I then went to gym. Sat down for a while because I love to relax at least for like 15 minutes after the gym. There's a place right outside my gym, like there's a platform, I sit on it, and it's so peaceful in the morning to just sit there and listen to some slow songs. Yes, and then I went to have my breakfast. आज breakfast में डोसा था, मसाला डोसा था. तो मतलब 4 साल से डोसा ही खा रही हूँ, तो कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं रहता उस चीज़ का. लेकिन yeah, it was nice. So yeah, as you all know that I'm doing this 21-day challenge. If you are not aware about it, I will link down few of my videos or few of my days. I post a short every day of like kind of a mini vlog, summarizing my day, wherein I'm trying to inculcate some good habits which are healthy for me, whether it be related to workout, diet, or just studying at least a minimum number of hours per day, so that I am productive and I don't waste my day just being lazy. So yeah, this vlog especially is going to be an expansion of one of the days. To be precise, it is day 15, day 16 today. It is day 16 today, and I am going to show you and take you along throughout the day. Right now I'm getting very late for my class. It is, I think, what time is it? Around 9:15, and I have a class at 9:50. 10 minute late चलता है, but फटाफट I have to get ready. चलो, see you all in a bit. This was a bit light day. कोई बात नहीं, next time I will improve. We are ready. चलो, let's go. I am back from the class. I'm extremely tired. First of all, okay, I'll just sit and talk. I do not have the energy to, stand. Wait. Yep. Actually, I've been running around since the morning, so I did not get time to, properly sit down and talk. But yeah, I have quite some time right now to just speak to the vlog. As you saw, I woke up in the morning. I had a good gym routine today. It was an upper body day. पहले I used to hate working out so much. अभी आजकल जब से मैं consistent होने लगी हूँ, touch wood, I've started loving working out. The only task which is very tough for me is to wake up in the morning. सुबह उठने में मुझे इतनी मौत आ जाती है. मैं इतने सारे अलार्म्स लगाती हूँ, एंड जिम अगर सुबह रह जाए तो इधर हो ही नहीं पाता, नहीं तो फिर मैं इवनिंग में शिफ्ट कर दूँ तो फिर बाकी के स्टडी रूटीन में या किसी चीज़ में बहुत गड़बड़ हो जाती है. तो आई ट्राई टू कंप्लीट जिम इन द मॉर्निंग सो दैट मैं शाम को थोड़े आराम से अपना पूरा रूटीन फॉलो कर सकूँ. Another thing that I've started doing is to plan my day. Now I have brought this journal from a store on Instagram. I will link the exact journal in the description box, but it is so good. I'll show you it. It has this weekly overview page before the start of every week, wherein you can log in all the important stuff that you want to get done, and then there are these daily kind of pages जहाँ पे you can have your to-do list, your
schedule, and this is so appropriate for me. If any of my day is not planned, I just get blank throughout the day, and it just feels very aimless without any plan. So I like to have plans. ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे अभी 6 o'clock 7 o'clock लिखा है तो मैं एकदम डॉट टू डॉट उसी टाइम से चलती हूँ. नहीं, आगे पीछे हो जाता है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कभी कभी एक आध घंटा आगे पीछे हो जाता है. बट देन एटलीस्ट माइंड में रहता है कि ये टास्क हो गया है, फिर उसके बाद ये टास्क कंप्लीट करना है. सो या, दिस इज़ हेल्पिंग मी बी utilize time in a much better way. What else do I want to tell you is, yes, about the 21-day challenge. उसी की वजह से ये सारी आदतें लगी है. जिम जाना, सुबह उठने की आई वुडंट से आदत लगी है, बट देन पहले से काफ़ी ईजी हो गया है. एटलीस्ट मैं वो डिसीजन ले पाती हूँ कि सुबह उठना है. सुबह उठते वक्त चाहे जितनी भी दिक्कत हो, बट मैं वो डिसीजन ले पा रही हूँ कि सुबह उठना ही है. अबाउट द 21-day challenge is that कि आई डिड अराउंड 10-12 days अच्छे से कंसिस्टेंटली एंड कॉन्जिक्यूटिवली. बट फिर उसके बाद 1-2 दिन आ गए थे जहाँ पे मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, बिकॉज माई लाइफ स्टाइल थ्रू आउट माई लाइफ हैज़ बिन वेरी वियर्ड. कि मैं स्कूल में जब थी तब मतलब मुझे सुबह उठना ही पड़ता था, बट देन आफ्टर दैट 11-12 भी अगर छोड़ दे तो फिर इंजीनियरिंग में आके मैं हमेशा आफ्टरनून क्लासेस ही चूज़ करती हूँ. तो मेरा उठने का स्केड्यूल पूरा ही ख़राब हो गया है. आई एम अ नाइट पर्सन, बट आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन, बिकॉज just day just gets a little longer. एंड मम्मी ने बोला है कि एनवायरनमेंट की साइकिल के हिसाब से रहना है, तो आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट इन माई सेल्फ. डे 12 तक आई डिड इट काफ़ी अच्छे से, बट फिर बाद में 2 दिन के लिए मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी. मतलब मेरा पूरा लाइफ स्टाइल ही मैं एकदम रिवर्ट कर रही थी. ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत चेंजेस कर रही थी. आई वॉजंट वर्किंग ऑन वन हैबिट ना, आई वॉज वर्किंग ऑन मल्टीपल हैबिट्स. वर्किंग आउट, वेकिंग अप अर्ली, नॉट ऑल स्नैकिंग. मैंने स्वीट बंद कर दिया है, एकदम पूरा कम्प्लीटली बंद कर दिया है. एक दिन थोड़ा सा खाया था, बाकी बंद कर दी है. इसकी वजह से मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी एक दिन. और फिर दैट पर्टिकुलर डे आई कुडंट वर्क एट ऑल. आई फेल्ट सो एग्जॉस्टेड. I just felt too exhausted to do anything. And then that day went. I realized this one thing during the 21-day challenge is that अगर तुम ब्रेक ले रहे हो तो डिसाइड कर लो पूरा दिन ब्रेक ले लो. नहीं तो अगर ब्रेक नहीं लिया ना तो फिर वो गिल्ट पूरे दिन रहता है कि आज सुबह से ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना है, वो करना है. नहीं, दिन भी ख़राब हो जाएगा, गिल्ट भी आएगा. उससे अच्छा एक सोच के ब्रेक ले लो, वो बढ़िया रहता है. वो मैंने उस दिन नहीं किया था, इसीलिए फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत गिल्ट में चली गई थी कि शिट ये रह गया, वो रह गया. एंड आई फेल्ट वेरी 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 लो थ्रू आउट द डे. और फिर ये आउट ऑफ दिस गिल्ट मेरा वो दिन भी वेस्ट हो गया. सो उस वजह से मेरे 2 दिन का गैप आ गया था. बट देन touchwood I continued, resumed the series, and I feel so much better. I'm a kind of a person कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए रहती है, which I get कि sometimes it is not possible, but then अगर कुछ perfectly नहीं हो पाता तो फिर I feel extremely failure kind of feeling आ जाता है मेरे अंदर. तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा जो रूटीन मैंने सेट किया है वो मैं अच्छे से फॉलो करूँ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू मेक मी फील अकम्पलिश्ड. एंड आई लव दैट फीलिंग. आई नो आई टॉक्ड टू मच, बट देन हाँ, मतलब मैंने बाकी व्लॉग्स में इतनी ज़्यादा बात नहीं की है, तो अभी मैं सीख रही हूँ बात करने के लिए, है ना. मुझे अभी जाना है, लॉन्ड्री कलेक्ट करनी है मेरी. 2 दिन हो गए लॉन्ड्री पड़ी हुई है वहाँ पे. और फिर बिफोर I start feeling sleepy and very sleepy, I will sit down for my first study session. I just got my laundry, और laundry में ये हो गया था कि मैं भूल गई थी कि मैंने कब laundry दी है. तो हमारा एक रजिस्टर रहता है जहाँ पे while you give the laundry you have to write down your name वगैरह वगैरह, और फिर वापस जब लेके जाते तब तुम्हें वहाँ पे आउट साइन करना रहता है. और मुझे याद ही नहीं था मैंने कब लॉन्ड्री ली है, तो मुझे रजिस्टर में अपना नाम ही नहीं मिल रहा था, और फिर अक्का डांटने लग गई. चलो, मूविंग ऑन. आई हैव टू प्लान माई डे.
before it is too late. It is around 12:20 right now. मैं रूम आ गई थी 12:50 इश को और मैंने ऑलरेडी 25 मिनट्स वेस्ट कर दिया, तो मैं फटाफट से अपना डे प्लान कर लेती हूँ, बिकॉज इफ़ आई डोंट डू दैट तो फिर आगे का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. लेट्स गो. आई जस्ट हैड लंच. उसके पहले मैंने आज का दिन प्लान किया और थोड़ा सा 1 घंटे के लिए पढ़ाई की, और फिर अभी मैंने ऑलमोस्ट मेरा डे 15 का वीडियो एडिट कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट इट इन अ वाइल, बट देन आई एम वेरी 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 टायर्ड. आई फील एक्सट्रीमली स्लीपी एंड एग्जॉस्टेड. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ. मेरा जिम भी सुबह हो गया है, तो फिर दैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब इवनिंग में भी पूरा टाइम पढ़ाई के लिए बचा है. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँ और फिर पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्लीप मैं फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ी देर पढ़ूँगी. सो येस, आई विल गेट बैक टू यू वंस आई एम ऑल फ्रेशन्ड अप. Hello guys, we are up. I am up and I feel a lot more fresh, but मेरा ऐसे body थोड़ा अकड़ गया है. Although I slept for about just 1.5 hour. ज़्यादा होता है क्या? मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं होता, पर फिर भी ऐसे body थोड़ी सी अकड़ सी गई है. तो फिर मैं जाके फेस वॉश करूँगी. मुझे यूजुअली फेस वॉश करने पे और पानी पीने पे काफ़ी फ्रेश लगता है. सो आई विल गो डू दैट एंड देन आई हैव टू ऑयल माई हेयर बिफोर आई सिट डाउन फॉर माई नेक्स्ट स्टडी सेशन, क्योंकि आज एट एनी कॉस्ट आई हैव टू वॉश माई हेयर. बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो गया है स्कैल्प. So I've already mentioned this in few of my videos about the oils that I use, but if any of you is watching my videos for the first time, then I have really frizzy and dry, unmanageable kind of hair. Right now it's been like 5 days since I've washed my hair, so it's a little greasy right now, but usually it is वो भी मैंने बहुत सारा सीरम लगाया है इसीलिए वो ग्रीसी हो गया, नहीं तो माई हेयर इज़ एक्सट्रीमली ड्राई. सो इन दिस इज़ अ बॉटल, आर्गन ऑयल की बॉटल है बट मैंने इसमें रोज़मेरी ऑयल भी ऐड किया है एंड आई हैव मिक्स द टू. 3/4 इसमें आर्गन ऑयल है और 1/4 रोज़मेरी ऑयल है. What I do is I basically use this droplet to put the oil on my scalp. I oil my hair for 2 hours before washing my hair, because मैंने देखा है पहले कि मैंने ट्राई किया है कि मैं ओवरनाइट वगैरह रखूँ, बट उससे पता नहीं बहुत ही वियर्ड से हो जाता है बालों का टेक्सचर आफ्टर हेयर वॉश. सो आई फिगर्ड आउट फॉर माई सेल्फ कि 2 घंटा हेयर ऑयल रखना मेरे लिए ज़्यादा सूट कर रहा है. मैं बाकी डेज ऑफ द वीक आई डोंट अप्लाई हेयर ऑयल, आई जस्ट अप्लाई द ऑयल सिरम बाय लॉरियल वाला, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सिरम जो है वो, दैट आई अप्लाई whenever my hair feels very 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 unmanageable. I then massage my hair with my fingers first. एक्चुअली बहुत रिलैक्सिंग लगता है. आई जस्ट होप कि मैं अभी सो के उठूँ फिर से ना नींद आ जाए मुझे, बिकॉज आई हैव टू स्टडी. मैंने आज उतनी पढ़ाई नहीं की है. मेरा यूजुअली टारगेट रहता है कि मैं एटलीस्ट 3-3.5 घंटा पढ़ लूँ. फिर आगे तो मैक्सिमम, देयर इज़ नो मैक्सिमम, बट आई ट्राई कि मैं ओवर एग्जॉस्ट ना कर लूँ खुद को, क्योंकि फिर एक दिन पढ़ाई अच्छे से हो जाती है एंड देन बाकी के दिन मतलब नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट 2-3 दिन ऐसे लगता रहता है कि यार कल बहुत पढ़ लिया था, आज ठीक है थोड़ा रिलैक्स किया, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट नेक्स्ट डे में खुद को ना दूँ. इसीलिए मैं आज ओवर एग्जॉस्ट नहीं करती. मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, थोड़ा नहीं हो जाता है, काफ़ी 1-2 घंटा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन
मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट नहीं करती, जैसे पूरा पूरा दिन नहीं बैठ के पढ़ती अनलेस एंड अनटिल मेरी एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम भी तो वही होता है ना कि मैं दिन भर पढ़ती हूँ और फिर एग्ज़ाम के बाद एकदम पूरा पूरा दिन सो जाती हूँ. ओके, देन आई टेक दिस मसाजर. ये सिलिकॉन वाला मसाजर है. मैंने आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर मैंने नायका से ऑर्डर किया था. इफ़ आई फाइंड द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वन आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ आई डोंट देन मैं कोई और हेयर मसाजर जो मुझे अच्छे क्वालिटी का लग रहा है वो मैं लिंक कर दूँगी. It has actually very nice bristles, you know. It doesn't hurt my scalp. It actually massages it really well. वैसे तो मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ, but डिनर मैं यूजुअली 8:45 के अराउंड करती हूँ. सो आज पर्टिकुलरली मुझे बहुत भूख लग गई है. आई थिंक मैंने कंपेरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर डेज मैंने लंच आज कम किया था. तो मैं सोच रही हूँ कि एक एप्पल खा लूँ. ऑल्सो मैंने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू हैव एटलीस्ट 1 फ्रूट अ डे. कल मैं सो गया था, परसों से स्टार्ट किया मैंने, बट हाँ आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट एज मच एज आई कैन. तो आज मैं एप्पल खा लूँ. हमारे यहाँ पे एक छोटा सा सुपर मार्केट है, वहाँ से मैं फ्रूट्स लेके आती हूँ यूजुअली. बट फिर मैंने यहाँ से चीकू 2 लाए थे, दोनों ख़राब निकल गए. प्लस मैंने कीवी लाई है. अभी मैंने उतनी कीवी खाई नहीं है लाइफ में, मैंने बहुत पहले खाई थी तो मुझे याद नहीं कि वो कितनी खट्टी होती है. वन दैट आई हैव गॉट इज़ वेरी 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 सार. आई हैड टू रियली फोर्स माई सेल्फ टू कम्प्लीट 1. तो आई नीड टू फिगर दैट आउट. आई विल प्रोबेबली गो टू सम अदर सुपर मार्केट टू बाई फ्रूट्स की बात चल रही है तो मैं बता दूँ कि मेरा फेवरेट फ्रूट आजकल ड्रैगन फ्रूट है. मैंगो मैं लिस्ट में काउंट नहीं करती क्योंकि मैंगो बहुत ज़्यादा फेवरेट है. जो रीसेंट फेवरेट है वो ड्रैगन फ्रूट है. एंड आई नॉट द वाइट वन, ओनली द पिंक वन. आई लव इट. और पता है मैंने एक रील देखी, उससे मुझे पता चला कि वी कैन नो कि कौन सा मतलब ड्रैगन फ्रूट अंदर से वाइट है या पिंक है बाय इट्स शेप. इफ़ इट इज़ राउंड देन इट इज़ अ pink dragon fruit, and if it is oval then it is a white dragon fruit. Thank me later. Also let me know if you knew it already. Also you can let me know your thoughts about the 21-day challenge. Are you liking it? Are you getting a little bit thoda bahut motivated by the entire process? Will now go have this I will now go study because मैंने जितना डिसाइड किया उतना ख़त्म करना है आज. ओके, सो या आई विल गेट बैक टू यू. हेलो गाइज, finally after a lot of procrastination, after a lot of calls to my friends, my family and little bit of studying, I have finally washed my hair. It is a task for I think every girl. It's not just me. It's every girl. बाल धोने हैं आज इज़ अ सेपरेट टास्क क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है. बाल ऑयल करने पड़ते हैं, फिर उन्हें मसाज करना पड़ता है, फिर शैम्पू, कंडीशनर, मैं मास्क भी लगाती हूँ तो मास्क, फिर सिरम, फिर उसके बाद स्किन एकदम ऐसे इतनी ड्राई हो गई होती है ना स्किन केयर. सो या मैं यूजुअली रात को ही बाल धोती हूँ. ऑल्दो आई थिंक कि सुबह बाल धोना इज़ अ बेटर थिंग बिकॉज रात को अगर तुम हल्के से भी गीले बाल रह जाते हैं और तुम सो जाते हो उसमें तो फिर बहुत ही फ्रिजी हो जाते हैं. स्पेशली इफ़ यू हैव माई काइंड ऑफ अ हेयर, बहुत जल्दी फ्रिजी हो जाते हैं. वेदर चेंज हो फ्रिजी हो गए, पानी चेंज हो फ्रिजी हो गए, प्रोडक्ट्स चेंज हो फ्रिजी हो गए, गीले बालों के साथ सो गई फ्रिजी हो गए. तो इट्स यूजुअली बेटर फॉर मी टू वॉश माई हेयर इन द मॉर्निंग बिकॉज फिर वो दिन भर आराम से एयर ड्राई होते रहते हैं. रात को प्रॉब्लम हो जाती है. और आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि इट्स अराउंड 11:30 राइट नाउ और मेरा अभी तक जो दिन के टास्क थे वो ख़त्म नहीं हुए. ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं लेट सोई हूँ, जल्दी उठना होता है फिर भी, लेकिन वो मैं लेट सोई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, नॉट बिकॉज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था. आज पहली बार मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है. तो और मैं काम ख़त्म बिना करे सोऊंगी तो फिर आई विल बी
really frustrated and irritated tomorrow. So it's better कि I sacrifice my sleep than sacrificing the tasks for the day. Okay, तो I'll quickly do some skin care. मैंने पहले के vlogs में बहुत बार आप लोगों को skin care दिखाया है. मेरे products बार बार change नहीं होते, तो मैं कुछ आपको नहीं बताने वाली. बस मैंने ये चीज़ एक ऐड की है, Cosrx का स्नेल म्यूसिली. तो बाकी तो मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह, लिप बाम एंड ऑल लगा देती हूँ. मैं और एक क्रीम लगाना शुरू किया है. आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस क्रीम टू एनीबडी. मुझे डर्मैट ने रिकमेंड नहीं की है. मैंने अपना दिमाग चला के कृति सानन के स्किन केयर रूटीन में मैंने देखा था, और फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में. जितना मैं कर सकती थी उतना. ऑब्वियसली किसी डॉक्टर से मैच नहीं कर पाऊँगी मैं अपना रिसर्च. मैंने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका यूज़, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, प्लस मैंने जो फार्मासिस्ट थे फार्मेसी में उनको भी पूछा कि कितना क्वांटिटी, कब, कितनी बार, और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, एलर्जीज हो सकते हैं क्या. मैंने उनसे कंफर्म करके ये यूज़ कर रही हूँ. आई एम नॉट श्योर ये कैसा वर्क करेगा. आई विल लेट यू नो इफ़ इट वर्क्स. इट इज़ बेसिकली फॉर द मार्क्स, ऑल द मार्क्स दैट आई हैव. लेट्स सी. बाकी तो मैं कुछ एलॉबरेट स्किन केयर नहीं दिखाने वाली मैं आपको, क्योंकि मैंने बहुत बार दिखा दिया है. मेरा डेडिकेटेड वीडियो भी है. आई विल टैग इवन दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो. ऑल्सो कल रिपब्लिक डे है, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. आई एम श्योर कि मैं जब ये पोस्ट कर रही रहूँगी उसी दिन रिपब्लिक डे होगा. सो आपके प्रेजेंट में चल रहा है. यहाँ कल सुबह जल्दी उठना है फ्लैग होस्टिंग के लिए. That's it. Somehow I'm very, very, very excited for flag hosting this time. Another update that I have is कि मैंने एक official Instagram page start किया है. I saw कि almost हर YouTuber का एक public Instagram page होता ही है. तो मेरा existing जो था वो मुझे public नहीं करना था. So I created another Instagram account which is dedicated for content creation. So yes, I will put the Instagram handle here. Do follow it. I will keep updating you with the real time stories as much as I can. Have I told you guys that I have a cooking channel also? Actually, it is not mine, it is my mom's, but I try to be consistent on that channel as well, although I struggle a lot handling 2 accounts while balancing it with my studies. और honestly मेरे studies ज़्यादा important है content creation से. So for me study has always been a strong point and I will continue with that. Also, did you guys watch my makeup tutorial? Did you guys like it? I mean, it was my first time shooting a like tutorial kind of a thing. मुझे पता है मैंने get ready with me बनाए हैं जहाँ पे मैंने मेकअप किया है, हेयर किया है. Did you guys like it? I mean, did you guys find it easy, at least for the ones who are like new to makeup? तुम्हें अच्छा लगा क्या मैंने अच्छे से समझाया है? Did you guys get confused? Let me know if you want more of those or you love my vlogs. यार कमेंट करके बता दो कि वीडियोस कैसे चल रहे हैं, अच्छा लगता है to know if people are liking or not. Even if you're not liking, let me know कि what needs to be improved so that I can do that in the next one. I will now sit down for एक सेशन. आधे घंटे के लिए तो मैं बैठने की कोशिश करूंगी. एक्चुअली मुझे 1 घंटे के लिए बैठना था, बट देन अभी दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी बट आई विल probably search for jobs off campus. Hi guys, as you saw, I sat down for, I wasn't studying. I told you that I wanted to apply off campus, so I was doing that. It took me around, obviously I did not complete the task. There are like so many companies, but I did it for around 1.5 hour, and then I got in a call with my best friend. और फिर आप समझ ही सकते हो I'm extremely late. मतलब मैंने हद पार बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं. मतलब मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कि मैं 11 साढ़े 11 तक सो जाऊँ, and it is 1 right now. But never mind, it's okay, it was worth it. Love talking to her.
That's it for today's video. I hope you liked it. I hope I entertained you throughout the video. If you loved watching the video, then please hit the like button and let me know what are the things that I can still improve in my videos. Also, you can subscribe to the channel. That's it. See you all in the next video soon. Also, keep watching my 21-day challenge videos. That's it. See you all. Bye bye. Thank you so much for watching.